Good morning, students. Open your cameras. Yes, type in the chat box if the screen is visible to you. Okay. Okay. Basically, I have told you what will you learn in the secretarial practice subject. That is the role of the secretary, how the companies are issuing the share capital from the public or other ways to collect the money from the business. Okay. Now, I have you have to identify the first picture. इस first picture को identify करो ये क्या है. Write it in the chat box. What is the first picture? What do you see in the first picture? Okay. सिर्फ एक दो जनों को ही दिख रहा है, बाकी सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा है. Okay. Yes, it is the sack of money. We can say money, capital. Yes, correct. Now, answer in the chat box. What is the second picture? इस second picture में आपको क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है आपको? What is this? This. Okay. क्या दिख रहा है आपको? Okay, building दिख रहा है, computer दिख रहा है. Okay. Anything else? Yes. Things necessary to start the business. Correct. Building, machines, mobile. Okay. आप लोग इसको बीके में क्या बोलते हो? Buildings को बीके में क्या बोलते हो? Computers को, building को, mobile को, machine को क्या बोलते हो बीके में? What is the term used for that? Anyone knows? Okay, apart from the capital, try. Yes, very good, Mirna. Asset. Which type of asset is that? कौन सा है ये asset? कौन सा asset है ये? It is the fixed asset which has been there in the business for the very long period of time. Yes, Soham, correct. Asset it is. Now I will show you third picture. जो भी आपको दिखेगा इस पिक्चर में you have to write and guess what it is. Okay? इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? Write it in the chat box. Yes. Screen visible है? Is the screen visible to you all? If yes, then write it in the chat box. What are you observing in this picture? Very good, Anurag. Direct and indirect expenses. Very good. Anyone else? और क्या क्या दिख रहा है? What type of expenses are you observing in this? कौन से expenses यहाँ पे दिख रहा है आपको? Okay. Okay. Business expenses, ads, utilities. Okay. Office supplies. और किसी को नहीं दिख रहा है कुछ? Wages. Very good. Okay. These are all the business
एक्सपेंसेस. ओके, ये जो है ना, दिस वेजेस, ये फीस बिजनेस एसोसिएशन की, ऑफिस सप्लाईज, ओके, बिल्डिंग लीज पे है उसका भी हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा. यूटिलिटीज इज देयर. सी रेंट इज ऑल्सो देयर. रेंट का बिल यहाँ पे पड़ा है, रेंट इज ऑल्सो देयर. एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं ना, उसका कॉस्ट. दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस विच आर टू बी incurred in the business. Okay, हम लोग इन expenses के बारे में आज पढ़ेंगे, assets के बारे में पढ़ेंगे. Okay, what we will call it is corporate finance. Today we are going to learn about the corporate finance. Okay, who will read the first slide? Okay, Kashish, read. Introduction to corporate finance. First, the term finance is related to money and money management. Second, inflow and outflow money. Henry Ford said, money is an arm or leg, use it or lose it. Okay, see, we have studied that it is all about the money. ये सब मनी के बारे में है जो हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में यूज करेंगे, एक कंपनी में यूज करते हैं. ठीक है, मनी जो है या तो हम लोग उसको यूज करेंगे या तो फिर हम लोग उसको ऐसे ही रख देंगे. ठीक है, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कंपनी में तो कुछ ना कुछ कंपनी का फायदा ही होगा. तो मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. लूज इट क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही पैसे को रख दे रहे हैं कि किधर यूज नहीं कर रहे हैं, सो उसका कुछ यूज ही नहीं है. सो इट विल अल्टीमेटली devalue some or the other day. Okay, so it is use it or lose it. Corporate finance, finance मतलब क्या? Money, related to money and money management. Okay, इतना समझा सबको? If yes, write it in the chat box. Okay, now we will move towards the definition. Okay, who will read the definition? Yes, who will read the definition? I will call name now. Okay. Okay, Kaustubh, read the definition. Corporate finance. First, Henry Hoagland's explains the view. Corporate finance deal primarily with acquisitions and use of capital by business corporations. The terms corporation finance also include financial planning, study of capital market, money market, and share market. Okay, see, what it is written that corporate finance deal with the acquisition and use of capital. जब हम लोग यहाँ पे assets पढ़ रहे थे, ठीक है, जब assets पढ़ रहे थे वहाँ पे assets में बहुत कुछ था कि बिल्डिंग्स हम लोग ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं बिजनेस के लिए, some vehicle we are using to for the sales, and in this we have done the expenses. What it is written that it deals with the acquisition. हम लोग acquisition कर रहे हैं. Acquisition मतलब हम लोग ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? जो हम लोग के assets हैं वो ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं? By the use of capital. जो हम लोग ने पैसे लगाया है वो हम लोग उसको use कर रहे हैं by the business corporation. Corporate finance उसी को बोलते हैं. अब कॉर्पोरेट फाइनेंस में हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग हो, कैसे हम लोग मैनेज करने वाले हैं पैसों को, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट. फर्दर यू विल स्टडी व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में कौन कौन होता है वो सब स्टडी करोगे. मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट यू विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर्स. ओके, we will get back to the next slide. Okay, now write the words which you are seeing in this slide. Okay, कौन से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब वो वर्ड्स आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए. ओके, only debt, finance, okay, saving, okay, tax, debt, finance, उसके अलावा सेविंग्स. और कुछ पिक्चर से आपको पता चल रहा है, दिस इज ये पिक्चर, ओके, दिस पिक्चर, ओके, बिटकॉइन, वेरी गुड. ओके, दिस पिक्चर, ओके, डॉलर्स, ओके,
Anything else? Bills. Very good. Okay. Savings. Okay. इसके अलावा कुछ दिख रहा है? ये ओके, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, आपको इन सब से क्या पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होगा फिर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस बाय दिस पिक्चर? एक लाइन में। यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल ना? Okay, very good, Devika. Financial plan. Okay. Very good, Manasri. Making investments. Correct. Anything else? और किसी को? Very good, Sonia. Lot of things happen in the business. Very good. Yes, correct. Very good. Planning, making business, saving money. Correct answer, Manasvi. Capital structuring. Okay. Anything else? Okay. So basically corporate finance deals with all this. Okay. जो भी finance manager होगा ना, उसको corporate finance के लिए इन सबके साथ deal करना पड़ता है. How? The firm has to manage the educate business. Educate fund होना चाहिए business में. Educate fund होगा तो ही आगे चल के अगर किधर कुछ पे करना है, फंड्स होंगे हमारे पास, तभी हम लोग किधर पे कर पाएंगे. What we have to pay? Tax, bills, अच्छे से प्लान करना है इन सबको. ओके, इन सब के अलावा हमारे पास राइट सोर्सेस ऑफ फंड्स भी होने चाहिए. फंड्स के राइट सोर्सेस मतलब हम लोग ने कुछ सेव किया होगा. ओके, वो आगे चल के हमको काम आ सकता है. कभी हम लोग ने डॉलर और बिटकॉइन या फिर ऐसे सब शेयर मार्केट में कभी ट्रेड किया होगा, वो सब आ सकता है. एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है जिसमें इनकम हो, टैक्स हो, इन्वेस्टमेंट हम लोग अच्छे से कर रहे हैं. ओके, इनकम कितनी है हमारी? सी इन दिस चार्ट. इनकम कितनी है? बहुत है. उसमें से हम लोग कुछ पैसा जो है हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड कुछ पैसा जो है हम लोग टैक्स में लगा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर. सी, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, हम लोग का ग्राफ ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए. हम लोग का ग्राफ ऐसे ऊपर होना चाहिए. कैसे ऊपर होना चाहिए? अगर ऊपर नहीं होगा, व्हाट विल हैपन दैट द कंपनी विल इनकर द लॉसेस. This bomb is indicating that company will incur the losses if the funds are at the degraded level. उनके पास funds ही नहीं है कुछ pay करने के लिए. Okay, so in this way corporate finance manager has to deal with the all. Okay, next we will see about the sources of decisions on basis of corporate finance. जब हम लोग corporate finance लेते हैं, ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंस है उसको मैनेज करने के लिए कौन से डिसीजन होते हैं? फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट और द इन्वेस्टिंग डिसीजन. ओके, हु विल रीड? यस, हु विल रीड द फाइनेंसिंग डिसीजन? हु विल रीड? यस, आर्यन, कैन यू रीड द स्लाइड फाइनेंसिंग डिसीजन? यस. Okay, Aryan is not there. Okay, Soham, can you read? Is my voice audible to you all? Who will read the slide? Okay, Sonia, read the slide. Business firm has access to capital market to fulfill financing need. The firm can choose from equity capital or debit capital. Firm can even opt for bank loan, public deposit, distributor, finance Debentures. manager, ensure that firm is well capitalized. Okay, what is the financing decision? Financing decision मतलब हम लोग कहाँ से पैसा ले सकते हैं. कहाँ से पैसा ले सकते हैं हम लोग? एक तो इक्विटी शेयर से. ओके,
नेक्स्ट इज डेप्ट कैपिटल. डेप्ट कैपिटल मतलब लोन वगैरह. Okay, debt capital you will again learn. Debentures, public deposit, these are all the debt capital. Bank loan, these are all the debt capital. Finance manager ensures that firm is well capitalized. आज जब जरूरी है फर्म को उस टाइम पे उनके पास पैसा होना चाहिए, वेल कैपिटलाइज्ड होना चाहिए. अचानक से कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसको ऐसे जाने नहीं देना है अगर हमारे पास फंड्स ही नहीं है तो. ओके, सो in this way the finance manager has to keep the funds well prepared in advance. Okay, अगर समझो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप लोग को किधर कुछ आप लोग मॉल गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, ठीक है, आप लोग ने सोचा था हम लोग पहले घर से निकलने से पहले हम लोग मॉल से घूमने जाएंगे, कुछ खरीदने नहीं जाएंगे. ओके, लेकिन अचानक से आप लोग को वहां पे ड्रेस दिख गई, मन हो गया खरीद करने का, तो आप लोग के पास वेल प्रिपेयर्ड फंड्स होने चाहिए उस ड्रेस को लेने के. आप लोग तो घर पे ही रख के आए थे ये सोच के कि मॉल में हम लोग सिर्फ घूमेंगे. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में भी जब अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ करने का टाइम आता है, अगर उनके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो फिर वो लोग अपॉर्चुनिटी कैसे लेंगे वो. सो इन द सेम वे द फाइनेंस मैनेजर हैज टू एंश्योर दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड. फर्म के पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए वेल इन एडवांस. ओके, हु विल रीड द सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन? Okay, Sona, read. Finance manager has to take decision regarding use of fund in systematic manner. Okay, इन्वेस्टमेंट. अभी हम लोग के पास फंड्स तो है लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है. सी हियर व्हेन हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर को एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि जितना हम लोग की इनकम आ रही है उसमें से कुछ परसेंट जो है ना हम लोग इन्वेस्टमेंट करें. ओके, इन्वेस्टमेंट करना है. इन्वेस्टमेंट किस में करना है, किधर प्लांट एंड मशीनरी में, किधर लैंड ले लिया, इन सब में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है. फाइनेंस मैनेजर ही डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स. हम लोग के पास फंड्स तो है लेकिन उसको यूज कैसे करना है, फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड दैट. ओके, फाइनेंसिंग, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस. ओके, हम लोग ने कुछ एसेट्स परचेज कर लिए कंपनी के लिए. Okay, that has to be made by the decision by the finance manager. Okay, अगर जब इन्वेस्टमेंट हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग. ओके, व्हाट वी आर सेइंग दैट कैपिटल बजटिंग. जब हम लोग कोई भी एसिड यूज करते हैं बिजनेस में उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. दिस इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज जस्ट अ स्मॉल मीनिंग ऑफ इट. ओके, आप लोग इसको अच्छे से बाद में सीखोगे. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज importance of corporate finance helps in decision making. Who will tell me how the corporate finance is going to help us in the business? डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करेगा, कौन से डिसीजंस हम लोग को लेने हैं, राइट इट इन द चैट बॉक्स. व्हिच डिसीजन हैज टू बी मेड फॉर बाय द कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर? जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड. ओके, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. अनदर? ओके, who's yes. ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सेविंग, करेक्ट. सो जब हम लोग डिसीजन लेते हैं, कौन सा डिसीजन है, यस करेक्ट, फंड्स की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग कौन सा कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ऑल दीज डिसीजंस आर being done. Okay, so corporate finance is going to help us how these decisions are to be taken place. Next is helps in raising capital for the project. हम लोग कैपिटल कैसे रेज करेंगे प्रोजेक्ट में, हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा. ओके, कौन से किस तरह से कैपिटल रेज करना है हमको. सी, इक्विटी कैपिटल होगा, डेब्ट कैपिटल होगा, लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स. इन दिस वे वी हैव टू कलेक्ट द कैपिटल for the business. Okay, helps in smooth running of the business. Smooth running होना चाहिए business firm में. कैसे smooth running होगा, जब हम लोग के पास funds होंगे, company has to make the funds well in advance for the smooth running of the business. Okay, we have already studied that it has to be employees are paid on time,
loans are cleared on time, material is purchased whenever required, उसके पास funds होंगे तो ही material ले पाएंगे, sales promotion होना चाहिए, नए नए products लाने चाहिए. So in this way all these decisions जब हम लोग लेते हैं तो smooth running of the business होता है. Next is brings coordination between various activities. Okay, कौन सी activities हम लोग ने वहाँ पे expenses में देखी, which are the activities हम लोग ने यहाँ पे देखी, कौन सी activities हैं यहाँ पे, write it in the chat box. Yes, business supplies हो गया, wages pay करना हो गया, anything else? Yes. See. Ads का cost pay करना हो गया, rent pay करना हो गया. Yes, correct, very good. जब हम लोग ये सब करते हैं तो हम लोग का जो भी स्मूथली रन होता है. जस्ट ओके, सो इन सब के एक्टिविटीज के बीच में हम लोग कोऑर्डिनेशन रखते हैं. कोऑर्डिनेशन सिर्फ यही एक्टिविटीज के बीच में नहीं होती है, हम लोग को कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट को भी देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज नहीं किया एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छे से हुआ ही नहीं, तो क्या सेल्स अच्छे से होगा? राइट इट इन द चैट बॉक्स. इफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज नॉट परचेज्ड द रॉ मटेरियल्स adequately, then will the finished products will be arrive on time? Sales अच्छे से होगा on finished product का अगर raw material ही खराब है तो? Write it in the chat box. Yes, correct. Yes, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट के साथ. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल्स परचेस करने के लिए, एट द एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट? राइट इट इन द चैट बॉक्स. If finance department does not provide adequate finance for the purchase of the raw material purchase करने के लिए उनको पैसा ही नहीं मिला, yes correct, loss होगा कंपनी को. Very good question. So in this way coordination होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट से. Not only the departments but also the various activities which we have seen. Okay. नेक्स्ट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब फंड्स आते हैं, कौन से फंड्स हम लोग ने देखे? इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल. इनसे जब फंड्स आते हैं तो हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं बिजनेस को, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी तक मेरा जो बिजनेस था वो सिर्फ क्लोथ्स का था. ठीक है, क्लोथ्स में भी मैं सिर्फ शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, जीन्स मैन्युफैक्चर नहीं करती थी. लेकिन जब मेरे पास फंड्स आए, कैपिटल आए, तो मैंने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया. कैसे डाइवर्सिफाई किया? नाउ अलोंग विद द शर्ट्स आई एम सेलिंग टॉप्स ऑल्सो, आई एम सेलिंग जीन्स ऑल्सो. सो दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस. हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिस्क. हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे हैं अच्छे से. कैसे मैनेज कर रहे हैं रिस्क? क्योंकि हम लोग ने पहले से ही प्लान करके रखा था, हम लोग टैक्स इतना भरेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट इतना भरेंगे. सो पहले से ही हम लोग ने फंड साइड करके रखे थे. फॉर एग्जांपल, अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर लॉस हो गया कुछ स्ट्राइक्स की वजह से, तो अभी समझो फॉर एग्जांपल कंपनी में एम्प्लॉयज की स्ट्राइक चल रही है कि हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे. तो एक दिन का मैन्युफैक्चरिंग था 10,000. ठीक है, 10,000 कॉस्ट का मैन्युफैक्चरिंग था एक दिन का, लेकिन एम्प्लॉयज तो स्ट्राइक पे चले गए, तो एक दिन का लॉस हुआ नहीं हुआ 10,000. सो उसके पहले ही हम लोग ने मैनेज करके रखा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इतना फंड्स इसमें लगाएंगे. सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग. कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? जब हम लोग फाइनेंशियल प्लान बना के रखेंगे. ओके, रिप्लेस द ओल्ड एसेट्स. ओल्ड एसेट्स को हम लोग ने बेच के नए एसेट्स ले लिए. वो भी कैसे होगा? जब हम लोग एक फाइनेंशियल प्लान बना के रखेंगे कि हम लोग को इतने पैसे इसमें डालने हैं. So in this way we are replacing the old assets and purchasing the new which are going to be more effective in the business. Payment of dividend and interest. हम लोग ने interest और dividend pay करने के लिए भी कुछ रख दिया. See, अगर मैं इसमें इस फाइनेंशियल प्लान में मैं टैक्स की जगह पे यहाँ पे एक और लाइन बना देती हूँ, इतना % डिविडेंड को मिलेगा, इतना % टैक्स को मिलेगा, still my income is more. See, so in this way we have to plan accordingly. Okay, next, payment of taxes. We have already seen that some of the percentage we have already kept for the
payment of the taxes. Okay, now I will ask you some questions. इतना सबको समझा? Anyone has doubt? Write it in the chat box if anyone has doubt. If you have understood, put thumbs up in front of your name. Okay, only one student. Okay. Okay, now I will ask questions. Okay, write it in the chat box. First, dash is related to money and money management. Yes. Working in agriculture. Okay. Plant is growing. That means we our money is growing. See here, coins are there. Okay, working capital helps the company to manage the money in such a way that the money is growing. Okay, why fixed capital is shown as the house? Because our house is the asset of the company. कंपनी का हाउस है, कंपनी का हाउस की जगह पे हम लोग बोल सके हैं कंपनी की जो फैक्ट्री है वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है. Yes, Kaustubh, correct. We working in that company and make. Yes, correct. Very good, Mirna. And जिसने भी आंसर दिया, yes, next answer is given by yes, Sona, buying fixed asset. Okay, so in this way जो हम लोग कैपिटल बार बार कंपनी में अभी प्लांट में जैसे फ्रूट्स निकालते हैं वैसे कुछ मनी जो है ना वो भी हम लोग निकालते हैं वापस इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, वे वर्किंग कैपिटल हम लोग देखेंगे कैसे साइकिल घूमता है. फिक्स्ड कैपिटल इट इज देयर इन द बिजनेस. ओके, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. ओके, इट जस्ट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन. ओके, वी विल सी हाउ. Okay, which are the assets that you are observing in the picture? कौन सी asset आपको दिख रही है picture में? Write it in the chat box. Which assets are there in the picture? Yes, factory. Okay. Anything else? Yes, only one student. Okay. Computer, plant and machinery. Yes, correct. Building. So you see that fixed capital is the capital which is invested in the plant and machinery, building, land, computer devices. These are the fixed capital. Okay, fixed capital क्यों है? क्योंकि ये जो है ना business में longer period of time के लिए रहने वाले हैं. These assets are not going anywhere, but these assets are going to help us in the production of the गुड्स. अभी प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें से प्रोडक्ट्स बनेंगे. बिल्डिंग्स एंड लैंड है, इसमें ही प्रोडक्ट बनेगा, इस पे ही हमारी फैक्ट्री लगेगी. कंप्यूटर एंड डिवाइसेस जो बिल्स होंगे वो हम लोग को कहाँ से मिलेंगे? कंप्यूटर एंड डिवाइसेस में से. दीज एसेट्स आर नॉट फॉर सेल. ये हम लोग सेल के लिए नहीं यूज करते हैं, ये कंपनी के खुद के होते हैं. These capital invested for acquiring the fixed capital. Fixed capital वो होता है जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट में. जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कंपनी की वो बहुत टाइम के लिए रहते हैं या फिर बोल सकते हैं हम लोग परमानेंटली. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. दीज आर ऑल द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स. Okay. Yes, which are the types of business? Anyone? Okay, car ka business. Very good. Yes, सिर्फ एक ही ने business देखा है. Hotel business, correct. Okay. Hotel management. Okay. Anyone else? Digital marketing. Very good. ओके, सी जितने भी एग्जांपल्स आप लोग ने दिए सबका नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है. अगर आप लोग बोल रहे हो होटल मैनेजमेंट तो होटल के लिए अलग अलग एसेट्स लगेंगे. द एसेट्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड इन द होटल इज टू बी डिफरेंट. अलग होगा. किससे अलग होगा? डिजिटल मार्केटिंग. नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव गिवन अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अलग एसेट्स लगेंगे हम लोग को. ठीक है,
In this way, every business requires different type of assets in the business. Okay, तो nature of business सबका अलग होगा, fixed assets सबकी अलग अलग होंगी. Size of the business, what do you mean by the size of the business? Answer in the chat box. Size of the business means, yes, size of the business, size से हम लोग को क्या पता चलता है? Very good Mrinali, large business. Anyone else? Very good Sonia, small business. Yes, स्मॉल बिजनेस में उतना एसेट्स नहीं लगेगा जितना लार्ज बिजनेस में लगेगा. सो फिक्स्ड कैपिटल अगेन इज गोइंग टू बी डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिजनेस. नाउ स्कोप ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द बिजनेस? स्कोप ऑफ द बिजनेस मींस हम लोग जब प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एसेट्स यूज करते हैं वो हमारे साइज पे डिपेंड होता है. अगर बिजनेस बड़ा है तो स्कोप भी बड़ा होगा फिक्स्ड एसेट्स का. अगर बिजनेस छोटा है तो स्कोप भी छोटा होगा एसेट्स का. एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, हम लोग ने पहले स्लाइड में देखा कि बिजनेस जो है कुछ ना कुछ रेंट और लीज पे करता है. तो वो जो होगा, अभी समझो रेंट ही मेरा 10,000 है, अभी मेरा इनकम जो है वो 50,000 है, उसमें से मैं रेंट पे करती हूँ 10,000, तो मेरा 40,000 विल बी द रिमेनिंग सेविंग्स. ओके, अगर मेरा रेंट 30,000 है तो मेरा सेविंग्स भी कम हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और मैं कैपिटल भी उतना ही यूज कर पाऊंगी. So in this way, extent of lease or rent is going to be affect our fixed capital requirement. Arrangement of subcontract. Arrangement of subcontract, it means that if a business wants to subcontract some process, अभी समझो कि कुछ एक प्रोडक्शन प्रोसेस मैंने किसी और बड़ी कंपनी को दे दिया कि आप लोग प्रोडक्शन करो, हम लोग सिर्फ सेल करेंगे. So उसका भी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल जो है हम लोग उसके हिसाब से, अभी जिसको हम लोग ने दिया है कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दैट पर्सन विल यूज देयर मशीनरी, तो हम लोग को मशीनरी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. अगर हम लोग मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का जो पैसा है वो हम लोग किसी और जगह लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ मशीनरी. तो हम लोग का मशीनरी से प्रोडक्शन भी आ रहा है, प्लस हम लोग कुछ और भी कर रहे हैं उस पैसे से. सो अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन गोइंग टू बी the reason for affecting of the fixed capital requirement. Again, acquisition of old assets, हम लोग old assets जो हैं हम लोग कभी acquire कर रहे हैं, कभी old assets को हम लोग sell कर रहे हैं. So in this way that is going to be affect the fixed capital. International conditions मतलब, have you heard about the way international conditions are going to be affected? Trend in the economy मतलब if the future of the company is anticipated to be bright, अगर हम लोग को पता है कि हम लोग का जो कंपनी का फ्यूचर है वो अच्छा करना है, हम लोग को कैसे करेंगे, हम लोग अपने ट्रेंड के साथ चलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड के वजह से मास्क पीपी किट्स इनका ट्रेंड है, तो हम लोग उनकी मशीनरी हम लोग लेके आ सकते हैं ये सब मैन्युफैक्चर करने के लिए. कभी कुछ और ट्रेंड होता है मार्केट में, कभी जीन्स का ट्रेंड हो गया, अलग जीन्स का ट्रेंड हो गया, कभी कुछ और ट्रेंड हो गया, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्ट अवर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ट्रेंड. पॉपुलेशन जो है किसी एरिया में कम है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा है. ठीक है, या फिर ये भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ अभी जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट गिव मी एग्जांपल ऑफ कार बिजनेस. ठीक है, कार बिजनेस में सब लोग क्या कार खरीद कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग ही कार खरीद कर सकते हैं. तो पॉपुलेशन जो है, अभी कार खरीदने वाली पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो सकती है. सो इसके हिसाब से हमारा फिक्स्ड कैपिटल जो है वो हमारा कम हो सकता है. लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि जो नेसेसिटी वाले गुड्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो शॉप्स हैं अभी भी आप लोग देखोगे कि चालू होते हैं बहुत देर तक. तो क्यों चालू होते हैं? क्योंकि वो लोग खरीदने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है. सो इन दिस वे द पॉपुलेशन ट्रेंड इज गोइंग टू अफेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे कि इंडस्ट्रीज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो अच्छी डिमांड होनी चाहिए उन गुड्स और प्रोडक्ट्स की. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को वो प्रेफरेबल है, कंज्यूमर वो लेना चाहता है, इसीलिए हम लोग गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं. सो इन दिस वे दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर फिक्स्ड कैपिटल. कॉम्पिटिटिव फैक्टर कैसे? कॉम्पिटिटिव फैक्टर अभी कोका कोला और थम्स अप में कंपटीशन है. यस, कोका कोला और थम्स अप.
anyone else can give me apart from this example? ऐसा ही किसी में कोई कंपटीशन हो? लेस कंपनी एंड बालाजी वाला लेस कंपनी, इन दोनों में कंपटीशन है. ओके, फोन में कंपटीशन है, लेकिन कौन से फोन में कंपटीशन है? यस, कोई और एग्जांपल देगा? ओके, आईफोन. आईफोन को किसके साथ कंपटीशन है? आईफोन खुद एक ब्रांड ऊपर खड़ा है. ओके, यस मृणाली, वेरी गुड. जियो एंड अदर कंपनीज, जियो का नेटवर्क हो या फिर और कोई. ओके, BMW एंड मर्सिडीज. ओके, Amazon and Flipkart, very good. Manasvi, Apple and Redmi. Okay, very good Mrinali. Android and iOS. So in this way, अगर मैं कंपटीशन देखूं तो कंपटीशन के हिसाब से भी मेरा जो फिक्स्ड कैपिटल है वो अलग हो सकता है. ओके, yes, Colgate and Pepsodent, very good. So in this way you can write all the examples in your points. Okay, now next is this was all about the fixed capital. Okay, now we will see the working capital. Now I will show you the video. You have to observe that video and at the end of the video you have to write it in the chat box कि आप लोग ने एक दो वर्ड कोई सुना होगा या फिर एक लाइन सुनी होगी या फिर आपको कुछ समझ में आया वीडियो से. That you have to write it in the chat box. Everyone understood? If understood, please thumbs up in front of your name. Yes. Okay, only 2 students. Yes, fast. Okay. सबको समझा? आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको जो भी वीडियो में समझेगा that you have to write in the chat box. Need of working capital. Working capital is defined as the amount of money Okay. सबको आवाज सुनाई दिया था वीडियो का? Is the video was audible to all of you? Okay. आप लोग ने कुछ ड्राइंग्स देखी वीडियो में? If the video was not audible, at least आपने ड्राइंग्स देखी होगी वीडियो में. So ड्राइंग से आपको कुछ समझा? Okay. I will explain you the video. Okay. Just a second. You have to answer if the video is now audible or not. Okay. working capital is defined as the amount of Is the video now audible? Yes, only one student is there. Is the video now audible to you all? Okay. I will explain that in this video, what they have seen, that working capital is the capital which is going to be needed for the startup of the business. जब हम लोग start करते हैं business, तब से ये working capital जो है आप लोग को business को use में आता है. कैसे use में आता है कि हम लोग को कुछ products लेने हैं. If we have to buy the products, if we have to pay for the raw material, if we have to pay for other expenses, so these working capital is the capital which is going to be there in the business, जो rotate होता है business में बार बार. Okay. For example, we can see. Okay, हम लोग पहले एक cycle पढ़ते हैं working capital का, then you will understand. Okay.
सी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल हम लोग के पास कुछ कैश पड़ा है, ओके, वी हैव कैश इन द बिजनेस। ये कैश से मैंने रॉ मटेरियल लिया, अब रॉ मटेरियल को मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में, रॉ मटेरियल को मैंने मशीन में डाल दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो व्हाट इज दिस? वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग ने हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वो अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुका है। हम लोग ने वो फिनिश्ड प्रोडक्ट किसको बेचे? कंज्यूमर को बेचा, ठीक है। कंज्यूमर को जब बेचा तो उसने हम लोग को पैसे नहीं दिए, उसने बोला वी आर गोइंग टू पे फॉर द फॉर नेक्स्ट टाइम, ओके। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम लोग सारा हिसाब क्लियर करेंगे, तो दैट विल बी द डेटर्स जो हम लोग को पैसे पे करने वाले हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स जो है व्हाट दे आर? बिल्स रिसीवेबल, हम लोग को उनसे पैसे मिलने वाले हैं। जब तक हम लोग को उनसे पैसे मिले तब तक तो हम लोग का दूसरा खर्चा भी आ सकता है, ठीक है। हम लोग को कुछ रॉ मटेरियल और लेना होगा, सो दैट जब हम लोग को उनसे पैसे आ जाएंगे, वापस कैश आ जाएगा उनसे, तो हम लोग वही कैश वापस रॉ मटेरियल में जाए। इस तरह से वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है ना वो चलता रहता है, ठीक है। इन दिस वे बिजनेस में खर्चे होते रहते हैं, खर्चे जब होते हैं तो उनमें से रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड्स होंगे, फिनिश्ड गुड्स हम लोग बेचेंगे कंज्यूमर को, दे विल गिव अस द मनी, दैट मनी अगेन गोइंग टू बी। तो ये साइकिल पूरा चलता रहता है। इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट वी आर कॉलिंग दिस? ऑपरेटिंग cycle, okay, that much you have understood? If yes, type it in the chat box. Yes, is my voice audible to you all? Yes, type it in the chat box if you have understood. Okay, I will again explain. See, this working capital मतलब समझो हम लोग के पास कुछ कैश पड़ा है, ठीक है। हम लोग इस कैश को कहाँ पे यूज करेंगे? रॉ मटेरियल को परचेस करने में यूज करेंगे। जब हम लोग के पास रॉ मटेरियल आ जाएंगे हम लोग उनको मशीन में डाल के प्रोडक्ट बनाने के लिए रख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग का काम चालू है, अभी तक हुआ नहीं है। जब काम हो जाएगा हम लोग के पास फिनिश्ड गुड आ जाएंगे, हम लोग उस फिनिश्ड गुड्स को कहाँ पे बेचेंगे? कंज्यूमर्स के पास बेचेंगे। कंज्यूमर्स जब बेचेंगे हम लोग तो उनसे कुछ ना कुछ पैसा आएगा, कुछ कंज्यूमर्स जो होंगे हम लोग को पहले ही दे देंगे। तो आप लोग ने बीके में पढ़ा है कि कुछ हम लोग कैश पे बेचते हैं, कुछ हम लोग क्रेडिट पे माल बेचते हैं, ठीक है, जो हम लोग को बाद में पैसे आते हैं। जब तक पैसे आए दे आर द सन्ड्री डेटर्स, हम लोग के डेटर्स हैं वो लोग की जिनसे हमको पैसा लेना है। तो अब वो जब पैसे देंगे दैट इज बिल्स रिसीवेबल, हम लोग को उनसे पैसा लेना है। जब आ जाएंगे पैसे सो दैट कैश अगेन विल बी यूज्ड इन टू परचेज द रॉ मटेरियल। सो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है एंड दैट साइकिल इज नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। Now you have understood, Kaustubh? You have to tell me which picture is this. क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? Okay. Okay. What are you observing in this picture? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? Okay. Property. और क्या दिख रहा है आपको? Yes, this is property. Okay. Money. Okay. Anyone else? What are you observing? Okay. Rent. Yes, correct. Okay. Wages. Correct. और किसको क्या क्या दिख रहा है? Pick me. Okay. Taxes. Yes, correct. Okay. So working capital is the capital जो हम लोग को current assets and current liabilities के डिफरेंस होता है। ओके, करंट एसेट्स हमारे जो हम लोग के पास करंटली अवेलेबल है, हम लोग के पास करंटली अवेलेबल क्या है? प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, कैश, ये सब हम लोग के पास करंटली अवेलेबल है, हम लोग के एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज हम लोग को इसमें से वेजेस पे करने हैं, रेंट पे करना है, यूटिलिटीज पे करनी है, पानी का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, टैक्स पे करना है। जब हम लोग इनको सबको पे करके कुछ बचेगा हमारे पास, दैट विल बी द वर्किंग कैपिटल। क्या बचेगा? कैश बचेगा हम लोग के पास, शॉर्ट टर्म डेब्ट बचेगा, इन्वेंट्री बचेगा एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वी विल सी व्हाट इज दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आपको इतना समझा? If you have understood, put yes in the chat box. We will see working capital. Okay. In the next lecture, we will continue this working capital. Okay. इसके बाद आप लोग का लेक्चर है Okay, we will stand for the after class prayer. First of all, on your cameras fast.